Hello IELTS seekers, welcome back to my channel. As Cambridge 18 is out, I'm pretty sure कि आप में से बहुत सारे students ने इसकी preparation भी start कर दी होगी. So here we are going to do it together. We are taking up the first reading test of Cambridge 18 and its first section, that is urban farming. We are going to solve it together. I assure you that if you watch this video from the beginning to the end, it will be pretty beneficial for you. And what are we waiting for? Let's start it quickly. We have the passage urban farming. First, we will read its questions. Questions 1 to 3. Complete the sentences below. सबसे important बात है हमारे लिए to read the instructions thoroughly. अच्छी तरह से जो भी instructions given है, what is required, what is not required, उसको बहुत carefully read करो. No more than 2 words and or a number. 2 words हो सकते हैं या फिर एक number हो सकता है या फिर 2 words के साथ 1 number और 1 word 1 number. This can be there. First question is urban farming in Paris. Vertical tubes are used to grow strawberries, dash and herbs. Now we are to focus on this word. हमें ये पता चल गया कि vertical tubes जो हैं उनको यूज किया जाता है किस किस चीज को ग्रो करने में. इनमें से 2 चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है, स्ट्रॉबेरीज एंड हर्ब्स, और थर्ड वाली हमने फाइंड करनी है जो कि इन दोनों के मिडल में होगी. लेट्स रीड इट हियर. स्ट्रॉबेरीज वी हैव फाउंड हियर. लेट्स बिगिन. Peer inside. Peer here doesn't mean to the fruit. It means look inside. And you see the tubes are completely hollow and roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. So first word we have found, strawberry. From identical vertical tubes nearby burst open row of lettuces. दूसरी चीज हमें मिली है lettuces. Near those of aromatic herbs. तीसरी चीज herbs है. तो स्ट्रॉबेरीज और हर्ब्स के बीच में हमें क्या फाइंड हुआ है, क्या लोकेट किया है हमने, जो ग्रो किया जाता है यहाँ पे, इट इज लेटसेस. सो आवर राइट आंसर इज लेटसेस. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कई बच्चों को लगे कि स्ट्रॉबेरी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पियर इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बाद उनको पियर देखने को मिल सकता है, बट हियर द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. This is P-E-E-R. Peer means looking inside something. Next question is, there will be eventually a daily harvest of as much as the dash in weight of fruit and vegetables. Eventually, in the end, daily harvest होगी. As much as means much लगा हुआ है, तो we require the quantity here. कितनी quantity होगी फ्रूट्स और वेजिटेबल के वेट में. वेट की बात की गई है, हमने वेट को भी फोकस करना है. द नंबर्स वी आर फाइंडिंग हियर. लेट्स रीड. 14,000 स्क्वायर मीटर्स. नो, ये वेट की बात नहीं है, ये एरिया है स्क्वायर मीटर्स. और आगे बढ़ते हैं. 3,000 लेटसेस एंड 150 प्यूनेट्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज. When the remaining 2/3 of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kilogram of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables every day. So we have found the key words here. एक तो every day, यहाँ पे daily harvest था, वहां पे हमें every day मिल गया, और दूसरा as much as quantity required थी, तो हमें यहाँ पे मिल गया 1,000 kilogram kg. So we have written this. Third question is, it may be possible, हो सकता है, that the farms produce will account for as much as 10% of the city's dash overall.
ये पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोडक्शन होती है वो सिटी की किस चीज की 10% हो। लेट्स रीड 10% हमने जल्दी से फाइंड करना है स्कैन करके। सो हियर वी हैव गॉट 10%. वी विल रीड इट थॉरोली starting from the beginning of the line. But if unused space can be developed like this, there's no reason why you shouldn't eventually target maybe between 5% and 10% of consumption का 10%, सिटी की ओवरऑल कंजम्पशन का। एंड वन थिंग मोर, सी इट इज रिटन सिटीज, सिटी का। हियर ऑल्सो इट इज रिटन ऑफ कंजम्पशन। सो वी हैव फाउंड द राइट वर्ड हियर, इट्स कंजम्पशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस 4 to 7. चूज वन वर्ड ओनली, सिर्फ वन वर्ड की रिक्वायरमेंट है हमारे लिए यहाँ पे। इंटेंसिव फार्मिंग वर्सेस एरोपोनिक अर्बन फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग, एरोपोनिक, उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग है ये। सिलेक्शन देन सेल। ग्रोथ में हमें ब्लैंक मिल रही है फर्स्ट। वाइड रेंज ऑफ डैश यूज्ड, किस चीज की बहुत वाइड रेंज यूज की जाती है ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग, हमारे लिए कीवर्ड है। हम जल्दी से स्कैन करेंगे। हियर वी हैव फाउंड इंटेंसिव फार्मिंग। अब देखते हैं कहाँ से इसकी बिगिनिंग हो रही है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। First, I don't much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produce them are such huge generators of greenhouse gases. तो इंटेंसिव फार्मिंग की हमें दो बातें बताई गई हैं यहाँ पे। 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं और दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, वाइड रेंज ऑफ, वाइड रेंज। अब हम इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रेंज वर्ड नहीं यूज कर सकते, ह्यूज जेनरेटर्स ऑफ, वी हैव नो वर्ड दैट हिंट्स अस कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस आ सकता है। अब यहाँ पे है कि वी ईट हैव बिन ट्रीटेड विद, उनको क्या किया जाता है, 17 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स। अब ये जो है डिफरेंट पेस्टिसाइड, वाइड रेंज ऑफ, तो क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे, पेस्टिसाइड्स। रेंज यूज की जाती है पेस्टिसाइड्स की। नेक्स्ट नंबर 5 इज क्वालिटी नॉट गुड। ये हमें मिलेगा लिखा हुआ। उसके बाद हमने फोकस करना होगा वेराइटीज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स चोजन दैट कैन सर्वाइव लॉन्ग डैश। क्वालिटी नॉट गुड। हियर वी गेट क्वालिटी इज सो पुअर, सो दिस थिंग वी हैव गॉट। हमने दूसरी चीज पे फोकस करना है अब। Because the varieties are selected for their capacity to withstand. Withstand के लिए वर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या है, survive long. Such substantial journeys. अब उनकी क्वालिटी पुअर होती है क्योंकि उनको बहुत लॉन्ग जर्नी, बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है रेफ्रिजरेटेड फॉर्म में। सो हियर सर्वाइव लॉन्ग, किस चीज को सर्वाइव करना होता है उन्होंने, जर्नीज को। जर्नीज इज द आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज सेल डैश रिसीव वेरी लिटिल ऑफ ओवरऑल इनकम। ओवरऑल इनकम का बहुत कम किसको मिलता है। सो वी आर टू फाइंड किसको बहुत कम मिलता है। दैट ऑफ 80% ऑफ द प्राइस आई पे गोज टू होलसेलर्स। 80% होलसेलर्स के पास चला जाता है एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज के पास, नॉट द प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव एंड बिलो ग्राउंड।
अर्बन प्लेस, अर्बन फार्मिंग जो है वो ग्राउंड के ऊपर भी हो सकती है, बिलो द ग्राउंड नीचे भी हो सकती है. लेट्स फाइंड वेयर द लोकेशन इज. फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन फार्मिंग को फोकस किया हमने. वी हैव गॉट इट. वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स. मशरूम्स इन अंडरग्राउंड कार पार्क्स. स्ट्रॉबेरीज को डिसयूज्ड शिपिंग कंटेनर्स में, जो आउटसाइड द अर्थ हैं, उसमें यूज किया जाता है. मशरूम्स इन अंडरग्राउंड कार पार्क्स, ये जमीन के नीचे उगाए जाते हैं, तो इट मीन्स दोनों जगह पे किया जाता है. सो द आंसर फॉर आर दिस क्वेश्चन इज ट्रू. यस, दोनों जगह पे किया जाता है. नेक्स्ट वन इज some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand. Aeroponic farming में कुछ equipment जो use किए जाते हैं उनको हाथ से बनाया जाता है. So important things for us are equipment, aeroponic farming made by hand. Let's find it. Aeroponic farming, he says, is virtuous. The equipment weighs little. Equipment की बात आ गई, aeroponic farming की बात आ गई. वेज लिटल, इसका इक्विपमेंट का वेट कम होता है. कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी फ्लैट सरफेस एंड इज चीप टू बाय. अब इन्होंने प्राइस की बात की है, उसकी सरफेस की बात की है कि कैसी सरफेस पे इंस्टॉल किया जाता है, और चीप होता है रफली दिस मच स्क्वायर मीटर. तो हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो हाथ से बनाया जाता है या कैसे बनाया जाता है. So the information regarding this is not given to us. Number 10. Urban farming relies more on electricity than some other types of farming. Urban farming ज्यादा rely means depends, ज्यादा डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी पे किसी भी और टाइप की फार्मिंग की बजाय. Let's read where electricity word comes. Yes, here we have found electricity. We will read the whole line. It is cheap to run. इसे रन करना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता. Consuming a tiny fraction. Tiny fraction means थोड़ा सा पार्ट. Question number 11 is fruit and vegetables grown on the aeroponic urban farm are cheaper. Cheaper means cost effective, ज्यादा महंगी नहीं होती, than traditionally grown organic produce. कि जो इस वे से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से चीपर होते हैं. लेट्स रीड इट हियर. Higher than those, yes, typically sells at prices that while generally higher than those of classic intensive agriculture. चाहे क्लासिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर से इसके प्राइस ज्यादा होते हैं, आर लोअर देन, पर कम होते हैं सॉयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोअर्स के कंपैरेटिवली. ऑर्गेनिक हमें चाहिए था, ऑर्गेनिक हमें मिल गया, बट इन्होंने कहा है चीपर होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम लोअर देन. सो एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन इज देयर. द आंसर फॉर दिस इज ट्रू. Next one, most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. किसी भी टाइम में ये हार्वेस्ट की जा सकती है प्रोडक्शन इसकी. It is written here as much of the produce is suited for the summer months. सिर्फ समर मंथ में ज्यादातर प्रोडक्शन इसकी सूट करती है. सो एनी टाइम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, दैट्स वाई फॉल्स. नेक्स्ट वन, बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो. बीन्स को ज्यादा टाइम लगता है ग्रो होने में अर्बन फार्म पे देन अदर वेजिटेबल्स. दूसरी वेजिटेबल्स के कंपैरेटिवली बीन्स को ज्यादा टाइम चाहिए ग्रो होने में. लेट्स रीड वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट बीन्स, एंड बीन्स हियर वी हैव गॉट इट tend to take up a lot of space. उन्होंने बात की है स्पेस की, स्पेस ज्यादा चाहिए. for not much return, ज्यादा रिटर्न नहीं. nevertheless urban farming of the kind
being practiced in Paris is, then they are talking about something else. तो उन्होंने lot of space की बात की है, but time consuming है या कम time लगता है, ज़्यादा time लगता है, this thing is not talked about here. So the answer for this question is not given. If you want me to make other videos on the other sections of reading or listening, writing, any of the module, do mention it in the comment box, and keep visiting the channel for more such content in the upcoming times too. Thanks for watching.